welcome back to this YouTube channel and welcome to the video. My name is Dr. Neha and in this video we'll be knowing all about how to strategize our NEET PG preparation, how to go about with our preparation of NEET PG. So how to make your own strategy for NEET PG preparation. There can be many right strategies for NEET PG preparation. There can be many strategies which you might have seen. But in my opinion, your own strategy which suits you and which is actually according to you will prove efficient than many other strategies. You have to consider making your own strategy for NEET PG preparation. But what are the points or what are the things you should include in your strategy, how to make your own strategy? We'll be discussing all these points in this video. So first point, building your concepts. Building non-negotiable thing है ना. You have to build your concepts and then you have to supplement the material you have prepared. पहले you have to clear your concepts, then you have to supplement your basic material जो आपने prepare किया है with MCQs या कोई और resources की things या आपने पहले कभी और कुछ पढ़ा है, तो you have to supplement it, revise it, फिर test your preparation. This should be the blueprint of your strategy. Build concepts, supplement it, revise it, consolidate it, then test your preparation कि कैसा आपकी strategy is working or not. Right? So building concepts. How you'll be building your concepts, either main video से और RR से. RR will be helpful क्योंकि then you'll be doing MCQs या you'll be reading other stuff, तो it will complement only. So you'll prepare your material from that क्योंकि main videos बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, you'll not be able to finish your subjects on time. So RR videos से you'll make concepts first. Then you have to consolidate it or you have to supplement it first. सप्लीमेंट कर लिया MCQ प्रैक्टिस से, अदर पॉइंट्स से इंक्लूड कर लिया अपने बेसिक मटेरियल में ही जो आपने पहले अपनी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए हैं. इंक्लूडेड दैट, नाउ यू हैव टू रिवाइज जो भी आपने मटेरियल प्रिपेयर कर लिया है, यू हैव टू रिवाइज एंड देन यू हैव टू टेस्ट योर प्रिपरेशन. बेसिक से स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए. पहली बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू RR, मेन वीडियोस या कोई अदर या जो आपने नोट्स पहले से बनाए हुए हैं उससे. देन सप्लीमेंटेड MCQ प्रैक्टिस करनी है, देन रिवाइज इट, कंसोलिडेट इट, देन टेस्ट योर प्रिपरेशन थ्रू MCQ प्रैक्टिस या फिर GTs से. सो MCQ प्रैक्टिस दोनों तरह से यूज़ हो सकते हैं, लर्निंग टूल प्लस टेस्टिंग टूल्स दोनों. सो ये दिस इज़ द मेन और दिस इज़ द बेसिक, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो आपकी स्ट्रैटेजी का होना चाहिए. नेक्स्ट, हाउ टू गो अबाउट विद योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. पहले यू हैव टू डिफाइन योर रिसोर्स. कौन सा रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो. डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज इन योर फर्स्ट रीडिंग. द रिसोर्स यू हैव or the resource you believe is fine, works fine for you, you have to do that first only. No multiple resources in the first reading. So define your resource, कहाँ से पढ़ना है, then refine your resource. पढ़ लिया, concepts बना लिए, उसके बाद you have to refine that. refine कैसे, जो चीज़ें आपको नहीं याद रह रही हैं या जो चीज़ें उसमें ऐड करनी है, you have to refine उसको, आपके मटेरियल को. then you have to revise those materials जो भी आपने प्रिपेयर किए हैं. so define, refine, revise, basic यही होना चाहिए. right? so now we'll be knowing about कि how to go about with your readings, कि फर्स्ट रीडिंग में कैसे करना है, सेकेंड रीडिंग में या लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी. सो अगर आप नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट रीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जो शुरू कर रहे हैं अभी से, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. RR वीडियो से, वीडियो लेक्चर से बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. अपना बेसिक मटेरियल यू हैव टू मेक, जिसको आपने बार बार रिवाइज करना है फिर बाद में. यू हैव टू मेक अ बेसिक मटेरियल इन द फर्स्ट रीडिंग.
वो आप वीडियो लेक्चर से कर सकते हो, इधर मेन वीडियो से इफ़ यू वांट, या फिर आपने जो ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं वो भी पढ़ सकते हो आप। तो एक मटेरियल बेसिक सा तैयार कर लो और देन उसको रिवाइज करना है हमें अगली रीडिंग। ये फर्स्ट रीडिंग में आपका एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रीडिंग आपका बेसिक मटेरियल जो भी आपने पढ़ा है वो तैयार होना चाहिए। इन द सेकेंड रीडिंग अब हमें रिवाइज करना है प्लस सप्लीमेंट करना है हमें। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप फर्स्ट रीडिंग के बाद भी कर सकते हो, या आई वुड सजेस्ट कि सेकेंड रीडिंग के दौरान आप कस्टम मॉड्यूल्स बना के जो सब्जेक्ट का कर रहे हो, यू हैव टू मेक कस्टम मॉड्यूल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और सेकेंड रीडिंग में उसके साथ साथ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। नाउ विद एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मटेरियल मिल रहा है, और जो आपको जो स्टेटमेंट्स आपने कभी पढ़े नहीं हैं या फिर कोई न्यू टॉपिक मिल रहा है आपको उसमें, वो सारा हमने ऐड करना है अभी हमारे बेसिक मटेरियल में। अब हम उसे रिफाइन कर रहे हैं बिल्कुल, कि उसमें ऐड करके वी आर सप्लीमेंटिंग इट। तो सेकेंड रीडिंग में हमें वो करना है। और सेकेंड रीडिंग में यू हैव टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर टॉपिक पे फोकस करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अपना रिवीजन नोटबुक बनाओ, इधर रिवीजन नोटबुक या फिर इफ़ यू हैव बीटीआर, और आप अपने मेन जो नोट्स में या जो मटेरियल आपके पास है या रिवीजन नोट्स में यू कैन हाईलाइट इफ़ यू वांट, बट उसको you have to narrow down. Now going about with the third reading, third reading में जो सब हमने मटेरियल प्रिपेयर किया है इन द फर्स्ट रीडिंग और इन द सेकेंड रीडिंग में एमसीक्यू प्रैक्टिस से सारा मटेरियल कंसोलिडेट करना है इन द थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में कंसोलिडेशन ऑफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे फोकस करना है, ट्राई मेकिंग योर छोटी कॉपी में यू हैव टू इंक्लूड ऑल द स्टफ विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटेन, या नंबर्स वाले स्टफ या छोटे छोटे स्टफ जो बिल्कुल विल बी डिस्कसिंग अबाउट छोटी कॉपी। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट विद योर रीडिंग्स। फर्स्ट में क्या करना है, सेकेंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ 3 से 4 रीडिंग्स यू कैन मेक, है ना। फर्स्ट में ही कर ले, सेकेंड में कर ले, थर्ड में अगर आपको लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स वीक रह गए हैं तो उसका आरआर दोबारा करनी है, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स लॉन्ग थे उसके कुछ टॉपिक्स मिस हो गए हैं तो वो करना है। तो ऐसे करके यू कैन इंक्लूड 3 to 4 रीडिंग्स अपनी प्रिपरेशन में। सो लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लास्ट मंथ में नो न्यू स्टफ़, एक तो कोई नया स्टफ़ नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि न्यू स्टफ़ अगर इंट्रोड्यूस कर भी लिया आपने, यू विल नॉट बी एबल टू कंसोलिडेट इट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और यूल दूसरी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो मिस हो जाएंगी। सो नो न्यू स्टफ़ इन द लास्ट मंथ, वो नहीं करना है। ऑलरेडी जो हमने रिवीजन नोटबुक प्रिपेयर की है या फिर आरआर के नोट्स हैं जो आपने हाईलाइट किए हैं वो स्टफ़ पढ़ना है। रॉन्ग एमसीक्यूज़ वो स्टडी करने हैं, मिक्स्ड बैग एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस, यू हैव टू गो इनटू दैट मोशन ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज़, है ना। तो वो करना है लास्ट मंथ में। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे फोकस करना है लास्ट मंथ में, सिर्फ मोर रिवीजन करनी है इसमें। और उसके बाद फिर लास्ट वाले 15 और लास्ट वीक में मोर ऑफ रिविजन्स एंड लेस ऑफ टेस्टिंग, जीटीज़ या एमसीक्यू प्रैक्टिस लास्ट वाले वीक में वो कम करनी है, मोर रिविजन्स। सो ऐसे यू हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी about how to do first reading, फिर second reading, third या fourth if you require, फिर last month की strategy क्या होनी चाहिए, last 1 week में क्या करना है। So you'll have a mental clarity of कैसे you have to go about with your preparation. Some other topics which I wanted to talk about in this video are multiple resources FOMO. So see, अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में यू कैन इंक्लूड 1 or 2 मोर रिसोर्सेज इन योर प्रिपरेशन, तो इट्स ऑफ नो हार्म, है ना। यू कैन इंक्लूड वो रिसोर्सेज। अगर बहुत ही ज़्यादा फोमो हो रहा है आपको कि ये भी मुझे करना है ये, तो यू हैव टू गो अबाउट इन ए स्ट्रक्चर्ड वे कि पहले आई हैव टू मास्टर दिस, जो मेरे पास है मैं उसको मास्टर करना है उसको पहले,
फिर यू हैव टू सप्लीमेंट इट. सीधा अगर 2-3 रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन एनीथिंग. सो अगर आपको मल्टीपल रिसोर्सेज इंक्लूड करने हैं, गो अबाउट दैट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे. मास्टर योर बेसिक मटेरियल, उसके बाद फिर आप दूसरे रिसोर्सेज से यू कैन सप्लीमेंट और ऐड कर सकते हो आप. So what is the importance of taking breaks? Breaks are very important, right? To recharge yourself, to actually zoom out. कि जब हम प्रेपरेशन फेज में हैं तो वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन अ सिंगल थिंग, है ना. तो ब्रेक्स help us to zoom out and see a bigger picture, appreciate other things in our life, and actually make us एफिशिएंट इन अ वे कि हमारी हमारी प्रेपरेशन जो है वो अच्छे से और अच्छे से हो. सो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. टेक हेल्दी ब्रेक्स every week or every 2 weeks, which is very important in your preparation. Do things that you love. जो भी आपको ब्रेक्स में whatever suits you, whatever works for you. How to make custom modules and how to go about with your MCQ practice. So custom modules, I think they are a wonderful way to actually know कि आपको कौन सा एक सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक वीक है आपका, या फिर ये क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, या फिर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हैव टू इंक्लूड इसको हम रिविजन नोटबुक में. सो कस्टम मॉड्यूल्स यू कैन स्टार्ट इन योर सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग में आफ्टर कंप्लीटिंग अ सब्जेक्ट गो फॉर 50 to 100 क्वेश्चन, मिनिमम 50 और 100 क्वेश्चन. अगर in short subjects you can go for 50 questions, nahi to you can go for 100 questions. Solve 100 questions of that subject. You'll come to know about MCQ solve कैसे करने हैं, MCQ recall errors कितने हो रहे हैं, silly mistakes कितनी हो रही हैं, वो subject आपका कैसा है. सो एज अ होल सब्जेक्ट भी आपको पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट दोबारा करना है, इस पे थोड़ा फोकस करना है, और या इस टॉपिक की आर थोड़ी और देखनी है, या मेन वीडियो से ये वाला टॉपिक कवर करना है. तो फॉर एग्जाम्पल एस्टिग्मेटिज्म वॉज अ टॉपिक जो बार बार मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे. तो एस्टिग्मेटिज्म का मैंने मेन वीडियो से कवर किया था, क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म वो टॉपिक था, हर बार मेरा क्वेश्चन गलत होता था. सो आई सॉल्व्ड एस्टिग्मेटिज्म के क्वेश्चंस, देन वो टॉपिक कवर हो गया. तो अगली बार से एस्टिग्मेटिज्म इम्प्रूव्ड है ना, उसके वो टॉपिक इम्प्रूव्ड एंड उसके क्वेश्चंस आई वाज नॉट गेटिंग रॉन्ग. सो ऐसे यू हैव टू गो अबाउट विद योर वीक टॉपिक्स. कंसिस्टेंटली स्टडी करना इज इम्पॉर्टेंट गाइज. नीट पीजी प्रेपरेशन or INI preparation or any competitive exam preparation, it is a marathon. It's not a sprint. You have to take breaks, adequate breaks. एक मैराथन की तरह रन करना है ना, स्प्रिंट नहीं है. So you have to plan your day accordingly, plan your week accordingly, plan your month accordingly. इसको मैराथन की तरह ही लेना है. डोंट जस्ट गो कि आज 20 घंटे पढ़ के ख़त्म कर दूंगा ये वाला टॉपिक, नेक्स्ट दिन पढ़ा ही नहीं, 2 घंटे पढ़ा. ऐसे नहीं करना है. कंसिस्टेंटली यू हैव टू स्टडी एंड टेक योर प्रेपरेशन फॉरवर्ड. कंसिस्टेंटली अपने आप को पुश करते रहना है कि आज इतना पढ़ा, नेक्स्ट डे कल आई डू MCQ प्रैक्टिस भी करूँगा साथ में, अगले दिन ठीक है MCQ प्रैक्टिस ठीक है एनालाइज करूँगा, देन आई गिव अ GT. यू हैव टू डू your preparation, or you have to plan your preparation this way. So guys, I hope this video proves useful to you all, and you get a better picture of how to strategize your preparation, how to prepare your strategy, and how to go about with the preparation of NEET PG. So thank you so much for watching this video. Thank you.